topic this morning और आज की सुबह मेरे संदेश का शीर्षक है is called Alive Forevermore. और कहा है कि सदैव के लिए जीवित, Alive forevermore. हमेशा के लिए See, जीवित। the Bible says और बाइबल कहती है that Jesus is alive. यीशु जो है वो जीवित है। Where's the amens? Jesus is alive. यीशु जीवित है। See, you know, Pastor Shama said before we started this morning, और आज सुबह शुरू करने से पहले पादban शमा जी ने कहा this name that we are taking, the name of Jesus, is a very powerful name. ये नाम जो यीशु का नाम हम लेते हैं वो बहुत ही सामर्थ्यशाली नाम है, Because in the atmosphere, things are changing. क्योंकि वातावरण में चीजें बदलती हैं Things are changing right now. और अभी चीजें बदल रही हैं। Angels are bowing their knees. स्वर्गदूत अपने घुटने टिका रहे हैं All of heaven is standing up. और पूरा स्वर्ग उठा खड़ा हुआ Why? है। Because you are taking the name of the King of Kings and the Lord of Lords. ऐसा क्यों है? क्योंकि आप राजाओं के राजा प्रभु के नाम को ले रहे So हैं। I just want to speak on this Resurrection Sunday on this topic called Jesus is alive. तो आज पुनरुत्थान रविवार के दिन मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु सदैव के लिए Alive forevermore. सदैव के लिए वो जीवित है। Let's read from Revelation 1:17 to 18. और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 17 से 18 हम पढ़ेंगे। It says, when I saw him, I fell down at his feet as good as dead, but he laid his right hand on me, and I heard his reassuring voice saying, don't yield to fear. I am the beginning and I am the end, the living one. I was dead, but now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys that unlock death and the unseen world. और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 से 18 वचन ऐसा कहता है, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा, मानो मैं मर गया हूँ। लेकिन उसने अपने दाहिने हाथ मेरे ऊपर रखा और मैंने उसकी आश्वासित करने वाली आवाज सुनी, डरो मत, मैं शुरुआत हूँ और मैं अंत हूँ, मैं जीवित हूँ। मैं मर गया था लेकिन अब देखो, मैं हमेशा और हमेशा के लिए जीवित हूँ और मेरे पास वे कुंजियां हैं जो मृत्यु और अदृश्य दुनिया को खोलती हैं। See, the world celebrates a holiday today. और दुनिया जो है वो आज छुट्टी को मना रही They है celebrate it as a good day for the Christians. और वो ईसाई लोगों के लिए एक भले दिन को ऐसे मना रही But है, this is not a day for the Christians. परंतु ये ईसाइयों के लिए दिन This is a day for all of humanity. परंतु ये पूरे मानव जाति के लिए दिन है। Because this is the day Jesus declared once and for all that he is God. क्योंकि आज का वही दिन है जब यीशु ने घोषणा किया कि वो हमेशा के लिए प्रभु है। If we do a study of our world, यदि हम हमारी दुनिया की अगर अभ्यास को करें, there have been billions and billions of people who have been born on earth. और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते The हैं current population of the earth is 7 billion. और अभी की पॉपुलेशन जो है वो 7 करोड़ ऐसे है। So that means that right now there are 7 billion people on our planet. और इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पर अभी जो है 7 करोड़ लोलोग हैं जो If जीवित we हैं। do a quick census of our country, यदि हम हमारे देश की जनगणना करें तो we have 1.40 billion people. तो हम देखते हैं कि 140 करोड़. 40 करोड़ जो लोग 140 crore people call this country their home. और 140 करोड़ लोग जो है इस देश को अपना घर बुलाते हैं And that is in 2025. और ये 2025 में है। So can you imagine the number of people who have lived on earth since Adam? तो आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आदम के युग से कितने लोग इस पृथ्वी पर जिए। There have been billions. वहां पर ऐसे करोड़ों लोग होंगे And in those billions, there have been good men, और उन करोड़ों में भले व्यक्ति होंगे, there have बeen wise men, उधर सयाने व्यक्ति होंगे, there have been great men, महान व्यक्ति होंगे there have been really good kings, और सच्चे अच्छे राजा वहां पर होंगे there have been really wise kings, और बहुत से ऐसे सयाने राजे भी there have होंगे been wicked men as well, और बुरे व्यक्ति भी होंगे there have been men who have conquered the world, और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने दुनिया पर विजय पाया there have है। been men who are born so rich that if we study history, some of these men, when they would travel, they would change the complete economy of the place where they would travel. और ऐसे भी लोग बहुत अमीर लोग पैदा हुए होंगे
जो कभी सफर करते थे तो वो पूरे उस जो देश का जो इकोनॉमी है उसे बदल देते थे। Because there's one particular man who traveled once. I'll just very quickly tell you a story. एक छोटी सी कहानी आपको जल्दी बताना चाहता हूँ। There was once a man who traveled from Africa and he came towards Asia. और एक ऐसा मनुष्य था जो अफ्रीका से एशिया में आया, उसने सफर And किया as he traveled, he gave so much gold that every place that he stopped, he disrupted the economy. और ऐसा वो व्यक्ति था जैसे वो सफर कर रहा था तो जहां भी वो रुका तो उसकी अर्थव्यवस्था उसने बदल दी Because that is the amount of gold he just gave away. और इतना सोना उसने दिया। So we can say that he was a very, very rich man. तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था। But you know what? परंतु क्या जानते हैं The आप, commonality between all these good people, these rich people, these wise people, these good teachers, these good kings, is that they are all dead. और इन सभी महान लोगों में, राजाओं में, भले लोगों में एक चीज समान थी कि वो सभी लोग जो है वो मरे हुए थे। Their stories ended the minute they closed their eyes. और उनकी कहानी उसी क्षण समाप्त हो गई जिस क्षण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर Some of their tombs are there and we look at them as historical places. और उन कईयों की उनकी कब्र है और वहां पर हम उन्हें ऐतिहासिक जगह के रूप में And देखते if हैं। you open the tombs, you will find their bodies there, और यदि आप their bones. उनकी कब्र खोलेंगे तो आप उनकी कब्र में उनकी हड्डियों को पाएंगे। But Jesus is different. परंतु यीशु जो है वो अलग है, Because when you look at his tomb, he isn't there. क्योंकि जब आप उसकी कब्र को देखते हैं तो वो उसमें नहीं है। His tomb is there, but Jesus isn't there. उसकी कब्र है परंतु यीशु उस कब्र में Because नहीं है, he is alive. क्योंकि वो जीवित है And he's never going to die. और वो कभी नहीं मरने वाला। You know, there is no disputing the fact that Jesus is alive. और इस सच्चाई में कोई भेद नहीं कि यीशु जो है वो जीवित है। Jesus was born. यीशु ने जन्म लिया, He lived a life that was pleasing to the Father. उन्होंने ऐसा जीवन बिताया जो पिता को मन भावना था। He chose to die in accordance with the Father's will. उन्होंने पिता की इच्छा के अनुसार मृत्यु को पाया And because he was obedient to the point of death, God raised him up. और वो मृत्यु के क्षण तक आज्ञा पालन में थे, इसीलिए परमेश्वर पिता ने उन्हें जिलाया। The very foundation of the Christian faith is the resurrection of Jesus. और ईसाई लोगों का विश्वास का पाया जो है वो यीशु के पुनरुत्थान पर निर्भर है, Because without the resurrection, you and I are wasting our time. क्योंकि पुनरुत्थान के बिना आप और मैं हमारे समय को व्यर्थ कर रहे हैं। You know, I'll tell you this. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, One day, एक दिन time as we know it will come to an end. हम जानते हैं कि समय समाप्त हो जाएगा, The world will come to an end. दुनिया जो है वो अंत के देखेगी, Everything that we see will cease. हर एक चीज जो हम देखते हैं वो रुक जाएगी, But Jesus will continue. परंतु यीशु जो है वो चलते ही रहेंगे, Because he is the one whom the Bible describes as the ageless one. क्योंकि वही है जो बाइबल बताती है कि जिनकी कोई सीमा या कोई उम्र नहीं The है। Bible starts in Genesis 1:1 with God creating all things. और बाइबल बताती है उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने किस तरह से सभी चीजों की रचना And की। it ends in Revelation 22 verse 21 with God perfecting all things through Jesus. और प्रकाशित वाक्य 22:21 में हम देखते हैं किस तरह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने सभी चीजों को सिद्ध किया। So in other words, Jesus creates everything in Genesis 1:1. और दूसरे शब्दों में देखें तो उत्पत्ति 1:1 में यीशु सब चीजों की रचना करते How do we हैं। know this? How do we know this? और हम ये कैसे जानते हैं? Because John 1:1 says, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. क्योंकि यूहन्ना 1:1 में कहा है कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। And in Revelation 22:21, the Bible says that the grace of the Lord Jesus Christ be with all believers. Amen. और प्रकाशित वाक्य 22:21 में कहा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह हर एक के साथ बना रहे। So Jesus is in the first verse, Jesus is in the last verse. और यीशु जो है वो पहले वचन में है, वो आखिरी वचन में है। And the person who's writing this book, I just want you to recollect this. The person who writes John, the Bible describes him as the beloved apostle of Jesus. और यूहन्ना जो ये किताब को लिख रहा है, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का अति प्रिय चेला था। But when he saw the resurrected Christ,
परंतु जब उन्होंने पुनरुत्थित मसीह को देखा on your screens, when he saw the resurrected Christ, और जब उन्होंने पुनरुत्थान हुए वो मसीह को देखा, he was not looking at the Jesus that he knew. और वो उस यीशु को नहीं देख रहे थे जिसे वो जानते थे, He was now looking at the God of all creation. और अब वो सारी रचना के परमेश्वर को देख रहा And the था। Bible describes John as falling flat on his face और बाइबल बताती है कि वो जो है अपने मुख के बल गिर पड़ा, because he realized that the one who had created him is now standing in front of him. क्योंकि उसने ये जान लिया था कि जिसने उसकी रचना की है अब वो उसके सामने खड़ा है, He fell as a dead man before the Lord. और वो परमेश्वर के सामने एक मृत मनुष्य के समान गिर You know, गया। the Bible says that the glory of the Lord Jesus was so strong और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की महिमा इतनी प्रभावशाली थी that the man who once leaned on his bosom could not even stand in his कि presence. जिस समय वो व्यक्ति जो उसके छाती पर लेटा रहता था वो उसके उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाया। And this reminded John of the fact that he is mortal. और ये यूहन्ना को स्मरण दिलाता है कि वो वो एक नाशवान है, But the one standing before him परंतु वो जो उसके सामने खड़ा है is the one who makes all things new. वही वो है जो सब बातों को नई कर You देता know, है। but here's what the Bible says. और यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, The first thing that the Lord tells John और पहली बात जो परमेश्वर ने यूहन्ना से कही is do not fear. कि तुम डरो मत। My message for you this Sunday, this resurrection Sunday, और आज के पुनरुत्थान रविवार के लिए मेरे पास आपके लिए जो संदेश है is do not fear. कि आप डरो मत। Do not fear for your future. अपने भविष्य के लिए आप डरिए मत, Do not fear for your finances. अपने आर्थिक चीजों के लिए आप Do डरिए not मत, fear for your health. अपने चंगाई के लिए आप Do डरिए not मत, fear for your family's salvation. आपके परिवार के उद्धार के Do लिए आप not डरिए fear मत, for your situations at your workplace. आपके कामकाज की परिस्थिति के लिए आप डरे Do मत, not fear for a life partner. आपके संगति के लिए आप डरिए ना। Jesus says, do not fear. यीशु कहते हैं कि आप डरिए नहीं। I'm going to speak just 3 points this morning. और आज की सुबह केवल 3 मुद्दों पे मैं आपसे But I want you to listen to me very intently. परंतु मैं चाहता हूँ कि बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इन चीजों को सुने। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Let's get into the study of God's word. और परमेश्वर के वचन के अभ्यास में हम चलते हैं। The first point, पहला मुद्दा, there cannot be resurrection without crucifixion. और क्रूस पे चढ़ाए जाने के बिना पुनरुत्थान नहीं हो सकता। You know, the resurrection of Jesus is a reminder और यीशु का पुनरुत्थान जो है वो हमें स्मरण दिलाता है that without the cross, कि क्रूस के बिना there is no walking out of the tomb. और कब्र से बाहर निकलना संभव नहीं है। Jesus was very lonely in Gethsemane. और गेत्सेमनी के बाग में यीशु बहुत अकेले थे। We heard what Pastor Shama said on Friday. हमने सुना कि पासवान शमा जी ने शुक्रवार को क्या बताया। Jesus was lonely. यीशु अकेले थे, He was in pain. वो दर्द में थे। Everyone whom he knew had left him. हर एक जन जिन्हें वो जानते थे उन्होंने उसे छोड़ He दिया was था, lonely during his trial. और उसके कठिन समय में सताव में वो अकेले He थे, stood alone. वो अकेले खड़े थे। He stood alone not only during his trial but also before Pontius Pilate. और पिलातुस के सामने और अपने सताव के समय में हर समय अकेले खड़े थे। He was alone when he was tortured. और वो अकेले थे जब उन्हें सताया जा He रहा was था, alone when he was slapped. और वो अकेले थे जब उन्हें थप्पड़ मारे He जा was रहे थे, alone when his back was broken for you and me. वो अकेले थे जब वो कोड़े खा रहे थे, He was alone when his beard was pulled from his face. और वो अकेले थे जब उनके मुख से उनकी दाढ़ी को खींचा जा रहा He was था, alone in agony. और वो दुख में उस दर्द में वो अकेले थे। See, I want you not to lose sight of the fact that in all of that Jesus was God. और मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान ना भटकाए कि उसमें कि यीशु जो है वो प्रभु है, That in all that he was going through, Jesus was still God. और जो सब चीजों से वो गुजर रहे थे उस परिस्थिति में भी यीशु जो है वो प्रभु थे। Now, in this pain, in this humiliation, in this suffering, इस दुख में, इस दर्द में, इस शर्मिंदगी में imagine a situation where Jesus says, enough. आप कल्पना कीजिए कि यीशु कहता है अब बहुत हुआ, Imagine where Jesus says, I do not want this any further. और कल्पना कीजिए कि यीशु कहते हैं कि अब आगे मुझे और नहीं चाहिए। Did Jesus have that choice? क्या यीशु के पास वो विकल्प था? Some of you say no, but the answer is yes. आप में से कुछ कहते हैं नहीं, परंतु उत्तर है हाँ। Jesus had that choice यीशु के पास वो विकल्प था, because he prays in the garden.
क्योंकि उन्होंने उस बाग में प्रार्थना की He थी। says, Father, I pray that you would take away this cup from me. और उन्होंने प्रार्थना की थी कि पिता ये प्याला मुझसे आप दूर ले जाए, But nevertheless, let not my, but your will be done. परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। But here's the thing. यहाँ पर एक चीज है, Even after that, Jesus could have stopped it all. और उसके बाद भी यीशु जो है सभी चीजों को रोक सकते थे। In Matthew 26:53, listen to the scripture. और मत्ती 26वां अध्याय 53 वचन, Jesus reminds his disciples यीशु अपने चेलों को स्मरण दिलाते हैं that he can right now petition the Father, और कि इसी क्षण वो पिता से विनती कर सकते हैं, and the Father will immediately dispatch 12 legions of angels to defend Jesus. और 12 ऐसे गढ़ जो है स्वर्गदूतों के आ जाएंगे यीशु का बचाव करने के You know, I was लिए। reading this in the Passion Translation. और पैशन ट्रांसलेशन में मैं ऐसे पढ़ रहा था, And in the Passion Translation, और पैशन ट्रांसलेशन में ऐसा it कहा है, says ऐसा कहा है that if I petition the Father, do you not know that he will send 12 legions to save us? और वो कहते हैं कि यदि मैं पिता से विनती करूं तो वो इसी क्षण 12 गुट जो स्वर्गदूतों के हैं वो भेज देंगे। But in verse 54, और 54 वचन में हम देखते हैं Jesus immediately says, but I will not do that. यीशु तुरंत कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, Because if I do that, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूं तो then the Lord's prophetic plan for the world will come to an end. तो परमेश्वर की जो भविष्यवाणी की योजना है वो खत्म हो जाएगी। Jesus says, it is written, therefore I must go through it. और यीशु ने कहा ऐसा लिखा है इसीलिए मुझे इससे गुजरना होगा। Jesus reminds himself that his sacrifice is essential. और यीशु ने अपने आप को ये स्मरण दिलाया कि उनका बलिदान जो है वो बहुत ही जरूरी You know, we है। read this number, 12 legions of angels. और जो हम देखते हैं कि 12 गुट स्वर्गदूतों के, Let's do a quick study. और जल्दी से हम इसका अभ्यास करेंगे। One legion एक गुट जो है is 6,000 angels. 6000 स्वर्गदूत का होता है, Because one legion was a Roman detachment of 6,000 soldiers. और एक जो गुट है वो रोमियो के 6000 योद्धाओं का बनता है। So if we do the math, यदि हम इसे मैथ के रूप में देखें तो Jesus was in essence saying और यीशु जो है वो बता रहे थे that if right now I look to heaven and say, Father, now और यदि इसी क्षण में स्वर्ग की ओर देखकर कहूं कि पिता अभी 72,000 angels will descend. 72,000 जो है स्वर्गदूत वो नीचे उतर पड़ेंगे। And you know these 12 legions of angels और ये जो 12 गुट है स्वर्गदूतों का that Jesus was referring to, जो यीशु दर्शा रहे थे, they are not these angels that we imagine. और ये वो स्वर्गदूत नहीं है जिनकी कल्पना हम करते हैं। You know, from the time we are small, we look at angels and say, "Ha, fairies." और जिस हम बालक हैं उसी क्षण से हम सोचते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो परियां होती हैं। You know, they have feathers, they are white, they have nice halos around their heads. और उनके पंख होते हैं, उनके सफेद अच्छे कपड़े होते हैं, उनके ऊपर मुकुट ऐसा होता है। Jesus was not referring to those. और यीशु उनके बारे में नहीं बता रहे थे, The imagination of a 4-year-old. और जो 4 साल के बच्चे की कल्पना है। Jesus was referring to angels यीशु उन स्वर्गदूतों के बारे में बता रहे थे dressed in their battle gear. जो अपने योद्धाओं के कपड़े पहने हुए They हैं। had put on their armor. उन्होंने अपने सभी योद्धाओं के हथियार लिए Their हुए हैं, swords were drawn in their hand. उनके तलवार उनके हाथों में है, They were ready वो तैयार हैं and they were waiting. और वो रुके हैं, And they were waiting for just one word. और वो केवल एक शब्द के लिए रुके Because the हैं, one who would say the word was the commander of their army. क्योंकि जो वो शब्द कहने वाला है वो उनकी सेना का सेनापति And they है। were just waiting one word and we will come down. और वो केवल उस शब्द के लिए रुके थे कि वो शब्द आए और वो नीचे आ जाए। 72,000 angels. 72,000 स्वर्गदूत। You know the power of an angel? आप स्वर्गदूत की सामर्थ को पहचानते हैं? Let's look at the word of God. हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। In 2 Samuel 24 verse 15, दूसरा शमूएल 24 और 15वां वचन, the Bible tells us बाइबल बताती है that one angel कि एक स्वर्गदूत killed उसने मारा 70,000 people. 70,000 लोगों को मारता है। One angel in 2 Samuel 24:15 killed 70,000 people. 2 शमूएल 24 और 15वां वचन हम देखते हैं तो उन्होंने एक स्वर्गदूत ने 70,000 लोगों को मारा। Now let's do the math. अब हम गणित करते हैं। So 72,000 72,000 into गुणिले 70,000. 70,000, You know what is the answer? उत्तर क्या है? 43.20 crores. 43.20 करोड़। Jesus was saying यीशु कह रहे थे that right now if I call, इसी क्षण यदि मैं बुलाऊं, right now, इसी क्षण so 430 million people
will lose their life. तो 432 करोड़ लोग जो है अपने जीवन को गवा देंगे। I was doing another study. और एक दूसरा अभ्यास में कर रहा था। Estimates. I was looking at estimates. Science tells us and the study of humanity tells us और विज्ञान हमें बताती है कि और मानवता का अभ्यास जो है वो हमें बताता that है the population of the world during the time of Jesus यीशु के समय में जो दुनिया की जनगणना थी was only 300 million. केवल 300 करोड़ थी। So humanity could have been killed off तो मानव if जाति Jesus would have just said, Lord, I am done. तो यदि यीशु कहते कि प्रभु अब हुआ तो मानव जाति पूरी समाप्त हो जाती। But Jesus did not do that परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया because he had you on his mind. क्योंकि उसके जहन में आप थे। This morning I want to remind some of us here और आज की सुबह मैं आप में से कुछ को याद दिलाना चाहता हूँ that there is no resurrection without your suffering. और आपके सताव के बिना कोई पुनरुत्थान नहीं। If you are going through something in life, I want you to ask God not to take it away, but to bring you out victorious. और यदि आप अपने जीवन की किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपसे वो दूर ना की जाए परंतु आप उसमें से विजयशाली बने। Because the Bible says that the testing of your faith produces patience. क्योंकि बाइबल बताती है कि आपका विश्वास परखा जाना जो है वो आपके विश्वास को बढ़ाता And है। as patience develops, perfection comes. और जैसे जो है पेशेंस डेवलप होता है वैसे ही सिद्धता आती है। Most of us do not like to wait. हम में से बहुत लोगों को रुकना पसंद नहीं। We do not like to wait. हमें रुकना पसंद नहीं। Waiting is troublesome. और रुकना जो है वो बहुत ही सताने वाला है। But Jesus waited. परंतु यीशु ने रुके। He knew that what was coming ahead वो जानते थे कि आगे क्या आने वाला was है। a great future, not only for him, but for all of humanity. और वो महान भविष्य है केवल उसके लिए नहीं परंतु पूरे मानव जाति। What if what you are going through this morning is God's answer to someone else's prayer? और क्या है यदि किसी चीज से आप गुजर रहे हैं वो किसी की प्रार्थना का उत्तर है। What if the situation that you are going through this morning, यदि क्या ऐसा है जो आप जिस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं that when you come out victorious, you're going to be helping someone जब else? आप उसमें से विजयशाली बनेंगे तो आप किसी की सहायता Maybe करेंगे। that is God's plan. शायद वो परमेश्वर की योजना है। As humans, मानव के रूप as में Christians, विश्वासी yes, I'm saying the Christian's word. मैं ईसाई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। Sometimes we forget that He is Lord and we are not. कई बार हम भूल जाते हैं कि वो प्रभु है और हम नहीं। Let God do what He's doing in our life. और परमेश्वर को वो करने दे जो वो चाहता है आपके जीवन में करना। Another thing that we forget, दूसरी बात जो हम भूल जाते हैं the path to life और जीवन का जो मार्ग है is often through death. वो मृत्यु से होकर गुजरता Listen to है। what I'm saying. आप ध्यान से सुने मैं क्या कह When रहा I हूँ। say death, I'm not meaning physical death. और जब मैं मृत्यु कहता हूँ तो मैं शारीरिक मृत्यु को नहीं दर्शा रहा। It is the crucifying of our flesh. वो हमारे देह को जो है क्रूस पर It is चढ़ाने का dying to रूप myself every day. है। रोज हम अपने आप के लिए मरे Death is the path to spiritual life. और मृत्यु जो है वो आत्मिक जीवन का मार्ग Because when है। you crucify your flesh, your spirit man becomes alive. क्योंकि जब आप अपने जीवन को क्रूस पे चढ़ाते हैं तो आपकी आत्मिक जीवन जो है वो बढ़ती है। Do not pray, Lord, take this away. आप प्रार्थना न करें कि परमेश्वर इसे दूर करे But rather pray, Lord, let your will be perfected in my life. परंतु आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी Because हो at जाए। the end of it, you will see that God's plan for you has not been the cross, क्योंकि अंत में आप देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए वो क्रूस नहीं है but God's plan for you was the open tomb. परंतु परमेश्वर की योजना जो है वो खुली कब्र है। That when you walk out of that situation that you are in right कि now, जिस परिस्थिति में अभी आप हैं आप जब उसमें से बाहर निकलेंगे you know, one thing that Jesus did, एक चीज जो यीशु ने की when Jesus rose up from the dead, यीशु जब मृत्यु से जी उठे He left behind His grave clothes. उसने अपने जो कब्र के कपड़े हैं वो पीछे ही छोड़ Because He's दिए never needing them again. क्योंकि उसे दोबारा उसकी जरूरत नहीं थी। The Holy Spirit just wants to remind some of you this morning पवित्र आत्मा आज की सुबह आप में से कुछ को याद दिला that रहा on है this resurrection day, कि आज के पुनरुत्थान के दिन में as Jesus does His work in you, जैसे यीशु अपना कार्य आप में कर रहे हैं leave behind those grave clothes and walk out. अपने कब्र के कपड़ों को आप छोड़े और आगे बढ़े Forget your past. अपने भूतकाल को भूल Yes, जाए it may have been difficult. और ये शायद कठिन हो सकता Yes, है you need time to forgive someone. और इसके लिए आपको समय है किसी को क्षमा करने में। आप Yes, you have gone through a very difficult season of challenges and pain in your life. हाँ आप अपने जीवन के बहुत ही कठिन समय से आप गुजरे होंगे But so did Jesus. परंतु यीशु भी उससे गुजरे।
He persevered. वो आगे बढ़े। And this morning the Lord is reminding some of us to persevere. आज की सुबह परमेश्वर हमें से कुछ को याद दिला रहा है कि हमें भी आगे बढ़ना है। That as we persevere, Jesus will perfect all that which concerns क्योंकि us. जैसे हम आगे बढ़ते हैं सभी चीजें जिसकी हमें चिंता होती है परमेश्वर उन्हें सिद्ध करेंगे। The second point, दूसरा मुद्दा, if the resurrection is not real, then your sins are not forgiven. यदि पुनरुत्थान सच्चा नहीं है तो आपके पापों की क्षमा नहीं हुई। This world that we live in, ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, it does not dispute the birth of Jesus ये जो है यीशु के जन्म to को, a large extent. ये जो यीशु के जन्म को ऐसे विपरीत नहीं दिखाती। It does not look at Jesus and say, no, he was not a good man. It always will say he was a good man. और वो यीशु की ओर देखकर ऐसे नहीं कहते कि वो भला व्यक्ति नहीं था, वो हमेशा कहते हैं कि हाँ वो अच्छे मनुष्य थे। Some will say, oh, he was a wonderful teacher. और कुछ कहेंगे कि वो अद्भुत शिक्षक थे। But the one thing that they will always dispute is his resurrection. परंतु एक बात जिसका वो हमेशा नकार करते हैं कि उसके पुनरुत्थान होने का। You know why? ऐसा क्यों? Because if he's a good teacher, क्योंकि यदि वो अच्छा शिक्षक है, he's dead. वो मरा हुआ है। If he was a good man, यदि वो अच्छा मनुष्य है, he's dead. तो वो मरा हुआ है। But if you say he is risen, और यदि आप कहे कि वो जी उठा है, then he is God. तो वो परमेश्वर है। See, a dead Christ always speaks to the standard of the world. और एक मृत मसीह जो है वो हमेशा जो है संसार के चीजों को दर्शाता है। Because that is the law of nature. क्योंकि यही है जो ये संसार का नियम है। That everyone or everything that is born will die. हर एक चीज जिसने जन्म लिया है उसे मरना होगा। A living Christ, however, attests to the power of heaven. और एक जीवित मसीह जो है उसने स्वर्ग के जो समर्थ को दर्शाया। It says that heaven has the power to raise people back to life. और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के पास वो सामर्थ्य है लोगों को जी उठाने का। And it says that anything that heaven's power touches will live. और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग की जो सामर्थ्य जिसे छूती है वो जी उठती है। Let's look at what the apostle Paul says in 1 Corinthians 15:12 to 19. और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 15 से 19 में हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं। It says the message we preach is Christ who has been raised from the dead. So how could any of you possibly say there is no resurrection of the dead? For if there is no such thing as a resurrection from the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, all of our preaching has been for nothing, and your faith is useless. Moreover, if the dead are not raised, that would mean that we are false witnesses who are misrepresenting God. And that would mean that we have preached a lie, stating that God raised him from the dead, if in reality he did not. If the dead are not raised up, that would mean that Christ has not been raised up either. And if Christ is not alive, you are still lost in your sins, and your faith is a fantasy. It would also mean that those believers in Christ who have passed away have simply perished. If the only benefit of our hope in Christ is limited to this life on earth, we deserve to be pitied more than all others. तो पहले कुरिन्थियों 15वां अध्याय 12 से 19 वचन हम देखते हैं कि हम जो संदेश प्रचार करते हैं वह मसीह है जो मरे हुओं में से जी उठा है। तो तुम में से कोई कैसे कह सकता है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है? क्योंकि अगर मरे हुओं में से जी उठना जैसे कोई चीज नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा सारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास बेकार है। इसके अलावा अगर मरे हुओं में से नहीं जी उठाया जाता तो इसका मतलब होगा कि हम झूठे गवाह हैं और परमेश्वर को गलत तरीके से पेश करते हैं, और इसका मतलब होगा कि हमने झूठ का प्रचार किया है, यह कहते हुए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जी उठाया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर मरे हुओं का जी उठाया जाना नहीं है तो इसका मतलब होगा कि मसीह जो है वो जी उठाया नहीं गया, और अगर मसीह जीवित नहीं है तो तुम अभी भी अपने पापों में खोए हुए हो और तुम्हारा विश्वास एक कल्पना है। इसका यह भी मतलब होगा कि मसीह में विश्वासी मर चुके हैं, वे बस नाश हो गए हैं। अगर मसीह में हमारी आशा का एकमात्र लाभ पृथ्वी पर इसी जीवन तक है सीमित है तो हम सभी अन्य लोगों की तुलना में अधिक दया के पात्र हैं। The apostle Paul is saying if Jesus is not alive,
I pity you. और प्रेरित पौलुस कहते हैं यदि मसीह जीवित नहीं है तो मैं आप पर दया करता हूँ। Because he's saying, if he's not alive, then I am a liar. और वो कहता है कि यदि वो जीवित नहीं तो मैं झूठा हूँ। You know who Apostle Paul was? आप जानते हैं प्रेरित पौलुस कौन थे? Apostle Paul was a highly educated scholar of Jewish law. और प्रेरित पौलुस जो है वो यहूदी के नियम के बहुत ही ऐसे सयाने व्यक्ति If we थे। look at it from today's standards, he had multiple PhDs in Jewish law. यदि आज के तुलने में आप देखें तो उनके पास नियमों के बहुत से ऐसे जो है डिग्रीज थे। What is his qualification? और उनकी पढ़ाई क्या थी? A scholar of Jewish law. और यहूदियों के नियम के वो बहुत ही उच्च स्तर के सयाने Taught थे। at the feet of Gamaliel, one of the most respected scholars of Jewish law. और यहूदियों के नियम के बहुत ही व्यक्तिक प्रचारित व्यक्ति के गमीलियल के नीचे उन्होंने शिक्षा ली। He persecuted the church. और उन्होंने जो कलीसिया का He सत्ताव किया, killed people who believed on Jesus. जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उन्होंने उसको मारा। He threw people in jail. उन्होंने बंदीगृह में लोगों को डाला। He stood there as Stephen was being stoned to death. और जैसे स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा था वो वहां पर खड़ा था। But one day, as he's going to Damascus, परंतु एक दिन जब वो दमिश्क को जा रहे a थे, light shines from heaven. एक स्वर्ग से एक प्रकाश उन पर चमका। And Jesus says, Saul, Saul, why are you persecuting me? और यीशु ने कहा शाऊल शाऊल तू क्यों मेरा सताव करता है? And that is the moment this man's life changes forever. और उसी क्षण उनका जीवन जो है वो बदल गया। One encounter with Jesus is enough to change your life forever. यीशु के साथ एक ही आमना सामना काफी है आपके जीवन को बदलने के Because लिए। when you see or you hear from Jesus, क्योंकि जब आप यीशु से सुनते हैं या देखते हैं, you know that your life is going to fall into place. आप जानते हैं कि आपका जो जीवन है वो सही स्थान पर होगा। But I also want to tell you one thing. परंतु एक और चीज मैं आपको बताना चाहता Don't हूँ। wait for an angelic manifestation to say, oh, I've heard from Jesus. और स्वर्गदूत से आमना सामने के लिए आप ना रुके कि यीशु से मैंने सुना है। You know, some people pray, Lord, I want to see you. और कई लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे तुझे देखना है। Lord, I want to see what you look like. और प्रभु मुझे देखना है तू कैसा दिखता है। Lord, once I want to see you. और केवल एक ही बार मुझे तुझे देखना And है। if I see you once, I will never sin again. और यदि मैं तुझे एक बार देख लूं तो मैं फिर दोबारा पाप नहीं करूंगा। If once you show me what heaven is like, I will tell everyone what you have और done. यदि एक ही बार आप मुझे दिखा दे कि स्वर्ग कैसा दिखता है तो मैं आपके बारे में सबको बताऊंगा। रिश्वत दे रहा है? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? You're telling God, show me, then I will follow. आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप मुझे दिखाए फिर मैं आपका अनुयायी बनूंगा। But you know what the Bible says? परंतु बाइबल क्या कहती The है? Bible says, blessed are those who do not see yet believe. और बाइबल कहती है कि धन्य है वे लोग जो देखते नहीं है फिर भी विश्वास करते See, हैं। I'll tell you one thing. Listen very closely. आप ध्यान से सुने, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। If you see an angel, you'll get scared. यदि आप एक स्वर्गदूत को देखेंगे तो आप डर जाएंगे, Because angels क्योंकि स्वर्गदूत जो है are not these glowing creatures. और वो जो है ऐसे चमकने वाले You know, चीज़ wherever नहीं they है। walk, ऐसा gold गिरा के जाएगा, that is not an angel. और वो जहाँ कहीं जाते हैं सोना गिराते हुए नहीं जाते। That is just a jeweler. Okay, an angel is a powerful being. और एक स्वर्गदूत जो है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली जीव है। An angel has power. स्वर्गदूत के पास सामर्थ है। And one angel, we just saw, one angel can do so much damage. और हमने देखा कि एक स्वर्गदूत जो है वो बहुत सी चीजों को नाश कर सकते हैं। Now imagine the one who made that angel. और अभी आप कल्पना कीजिए जिसने उस स्वर्गदूत की रचना की The है। Bible says no one can see God and live. और बाइबल कहती है कि कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता और जीवित नहीं रह सकता। Moses one day said, Lord, I want to see your face. मूसा ने एक दिन कहा कि परमेश्वर मुझे तेरे मुख को देखना But here's है। what God did. God covered his eyes. और ये परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद कर दी। Because Moses would not have been able to live after he saw God. क्योंकि यदि मूसा परमेश्वर को देख लेते तो वो जीवित नहीं रह So पाते। God in his grace allowed Moses to see his back. परमेश्वर ने अपनी दया में मूसा को अपना पीठ दिखाया। John saw Jesus, यूहन्ना ने यीशु को देखा, but he only saw a bright light. परंतु उसने केवल एक चमकते प्रकाश He को saw a देखा। man who's so bright, his hair like wool, the Bible says. और उसने ऐसे मनुष्य को देखा जो बहुत ही चमकीला है, उसके बाल जो है वो ऊन के समान And he है fell like a dead man. और वो एक मृत इंसान की तरह गिर The पड़ा। commonality is that everyone who sees falls flat. और समानता ये है कि हर कोई जो देखता है वो मुंह के बल गिर पड़ता है। Don't pray, Lord, I want to see an angel. और आप प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर मुझे स्वर्गदूत को देखना है। Pray, Lord,
help me to believe in your word. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं Lord, आपके वचन पर विश्वास करूं। Help my unbelief. मेरे अविश्वास के लिए आप मुझे You know, सहायता as करें। you believe in Jesus, जैसे आप यीशु में विश्वास करते हैं God is going to just give you so much faith. How does faith come? और परमेश्वर आपको बहुत सा विश्वास देगा। विश्वास Faith- कैसा आता है? Faith, the Bible says, comes by hearing and hearing the word of God. और बाइबल कहती है कि विश्वास आता है और परमेश्वर के वचन से सुनने से So आता है। as you spend time with God, faith arises on the inside. और जैसे आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं तो आपके अंदर विश्वास निर्माण होता है। So this man Paul, let's come to his story तो again. प्रेरित पौलुस की कहानी को हम देखते हैं। This man is by our world standards a murderer. और ये दुनियाई स्तर पे यदि हम देखेंगे तो ये एक खून करने वाला है। He's a criminal. वो एक गुनहगार है He has killed innocent men and women. और उसने जो ऐसे बेगुनाहगार लोगों को मारा है। Why? क्यों? Because they believed in a God whom he did not believe in. क्योंकि वो ऐसे परमेश्वर में विश्वास रखते थे जिसमें वो विश्वास नहीं करता And था। one day the Bible says that that very God, the Son of God, stood before him. और बाइबल बताती है कि एक दिन वही परमेश्वर का पुत्र जो है वो उसके सामने खड़ा हो And गया Paul changed. और पौलुस बदल गया। And Paul went around the entire world preaching about this same God. और पौलुस पूरी दुनिया में गया इसी परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते You know what हुए। Paul says? और पौलुस क्या कहता है? Paul says, forget the past. और पौलुस कहता है कि भूतकाल को आप भूल Forget जाओ what has happened in my past. और भूल जाओ मेरे भूतकाल में क्या He's हुआ। writing to the church saying, I don't care what has happened in your past. Do you know what has happened in mine? और वो कलीसिया को कहता है कि भूल जाइए, मैं नहीं जानता कि आपके भूतकाल में क्या हुआ। क्या आप जानते हैं कि मेरे भूतकाल में क्या How हुआ? could Paul say that? और पौलुस ऐसे कैसे कह सकता है? Paul is literally saying, forget the fact that I have killed people. और पौलुस कह रहा है कि आप भूल जाओ कि मैंने लोगों को मारा है। Because Paul understood the power in the name of Jesus. क्योंकि पौलुस ने यीशु के नाम के सामर्थ को जान लिया। Some of you are dealing with guilt this morning. और आप में से कुछ लोग जो है वो गुनाह को ऐसे महसूस Some कर of रहे you are हैं। dealing with addictions this morning. और आप में से कुछ लोग जो है बुरी आदतों से जूझ रहे हैं। Remember the power of Jesus' name to break every addiction. और याद रखिए कि यीशु के नाम की जो सामर्थ्य हर एक बुरी आदतों को तोड़ सकती है। Remember the power in Jesus' name to set people free. याद रखिए कि यीशु के नाम में वो सामर्थ्य की जो लोगों को छुड़ा सकती है। Forget the past. भूतकाल को आप भूल जाए। These men, ये जो व्यक्ति है, these women, ये जो स्त्रियां हैं, these disciples, ये जो चेले हैं, they walked with Jesus. वो यीशु के साथ चले। They talked with Jesus when he was alive. और जब यीशु जीवित थे तो उन्होंने उनसे बातें की। They saw him on the cross as he was hung. और जैसे वो क्रूस पर लटके थे उन्होंने उसे देखा। They went to the tomb and they saw that he was not alive. वो कब्र पे He was गए not dead. और वो कब्र पे गए और उन्होंने देखा कि वो मरे हुए नहीं हैं, That he is alive. वो जीवित हैं। And then some of them saw him in person. और फिर उनमें से कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखा। And what did they do? और फिर उन्होंने क्या They कहा? became witnesses. और वो गवाह बने। They became witnesses of who Jesus is. और वो यीशु के गवाह बने। They became witnesses of what Jesus does. और वो गवाह बने कि यीशु क्या करता है उन चीजों You know what का। was their reward? और उनका प्रतिफल क्या था? Some of them were beaten. और किसी को मारा गया, Some of them were thrown away from their community. और उनके समाज से उन्हें निकाल फेंका, Some of them were killed. किसी को मार दिया गया, Some of them were crucified. किसी को क्रूस पर चढ़ाया Some गया, of them were burnt alive. किसी को जिंदा जला दिया गया, Some of them were fed to hungry lions. और किसी को भूखे शेरों के सामने डाल दिया Some of them गया, were stoned to death. किसी पर पथराव किए गए, Some of them were cut into two. और किसी को दो भागों में काट But दिया not गया। one of them stopped saying that Jesus is alive. परंतु फिर भी उनमें से एक भी जो नहीं रुका कि ये कहते हुए कि यीशु जीवित है। You know, it is very easy to defend a lie if it does not hurt you. और ये बहुत ही हल्का है एक झूठ का सामना करना यदि वो आपको नुकसान नहीं Because you'll say, पहुंचाता। हाँ मैंने देखा. आप झूठ के आप सहमत हो But the सकते हैं, minute your statement results in a death punishment, chances are you'll change. और जिस क्षण आपकी जो चीजें हैं बदलती है उसी क्षण आपका जीवन भी बदलता है। These disciples could have said it at any minute. No, I am lying. Jesus is dead. और ये चेले जो है किसी भी क्षण कह सकते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यीशु मरा हुआ है। But not one of them said that.
परंतु उनमें से एक ने भी ऐसा नहीं कहा। All of them said Jesus is alive. सभी ने कहा कि यीशु जीवित है, Because they knew that the pain on this earth is now temporary, because Jesus is going to see them on the other side. क्योंकि वे जानते थे कि ये जो दुनिया का दुख है वो कुछ ही क्षण के लिए है, परंतु यीशु जो है उन्हें जीवित रूप में मिलने वाला They है। knew that the situations that they are going through right now are temporary, because Jesus has already won. और वो जानते थे कि जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं वो कुछ ही क्षण के लिए है, क्योंकि यीशु जो है वो विजय हुए हैं। Not one of them backtracked their statement. और उनमें से एक भी जन जो है वो अपनी गवाह से पीछे नहीं They were हटे, eyewitnesses to what they saw, और वो उस जगह पर आई विटनेस थे जो चीजें उन्होंने देखी, and they stood till the very end. और वो अंत तक खड़े रहे। You know, if they would have just said, "Nay, I did not see," और अगर यदि वो कहते कि हाँ मैंने नहीं देखा, they would not have been killed. उन्हें मारा नहीं जाता, They wouldn't have been kicked out of their community. उन्हें उनके समाज से निकाला नहीं They would have जाता, been accepted by society. उन्हें समाज में स्वीकारा जाता, But they chose to let it all go. परंतु उन्होंने चुनाव किया हर एक चीज को छोड़ने का। They realized that what they found was greater than what they already had. उन्होंने जाना कि जो चीज उन्होंने पाई है वो महान है उन सभी चीजों से जो उनके पास है। Some of us need to come back to this understanding हम में से कुछ लोगों को इस समझ में दोबारा आना है that Jesus is greater than everything you have. और यीशु उन सभी चीजों से महान है जो आज आपके पास See, है। I'll tell you, Jesus is not a genie. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु जो है वो कोई जीनी नहीं है। Some people come to Jesus expecting a genie. और कुछ लोग यीशु के पास आते हैं एक जिन के रूप में, 3 wishes देगा. और 3 इच्छाएं हमें मिलेंगी। You rub the lamp, a genie comes out. हाँ, what are your wish? I want this, I want this, I want this. और आप उस चिराग को घिसेंगे और ये 3 इच्छाएं आप प्रकट करेंगे। Jesus is not a genie. यीशु जो है वो कोई जिन नहीं है, Jesus is God eternal. और यीशु जो है वो अनंत काल का Jesus परमेश्वर is है, the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। Every time we say Jesus, all of heaven bows. और हर जिस क्षण हम यीशु कहते हैं तो पूरा स्वर्ग जो है वो झुकता है। Do not treat Jesus like a bank. और यीशु को जो है आप एक बैंक के रूप में आप इसका ऐसे इस्तेमाल ना करें। You know what I mean by that? मैं आपका क्या कहना चाहता हूँ, If you listen to some prayers, यदि आप कुछ प्रार्थनाओं को सुनेंगे, some prayers go like this. कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं, Lord, bless me, bless me, bless me, bless me, bless me. प्रभु मुझे आशीषित 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 करे, Lord, I want this house. प्रभु मुझे ये घर Lord, I चाहिए, want this. मुझे ये चाहिए, Lord, I want this. मुझे ये चाहिए, Lord, I want this person as my life partner. और ये जीवन साथी मुझे चाहिए। बहुत carefully वो prayer करना. I'm telling everyone. Okay? Lord, I want this blessing. प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, Lord, I need this from you. प्रभु मुझे आपसे ये चाहिए। But can I tell you? परंतु क्या मैं आपको कह सकता हूँ, Those are very childish prayers. और ये बहुत ही बच्चों के समान प्रार्थना है। Children ask for blessings. बच्चे जो हैं वो आशीष के लिए मांगते हैं, There's nothing wrong with blessings. और आशीषों में कुछ गलत नहीं है। Children will always look at what a father brings. और बच्चे हमेशा देखते हैं कि पिता क्या लाता You know, है। even when I was small, और जब मैं भी छोटा था, when my father would come home, जब मेरे पिता घर आते थे, I was always interested क्या लाया. मैं हमेशा दिलचस्पी रखता था कि उन्होंने क्या लेकर I आए, was not happy कि पिता आया. और मैं खुश नहीं था कि मेरे पिता घर आए हैं। I wanted to know पिता क्या लाया. You're getting what I'm saying? Some of us are at that stage और हम में से कुछ जो है वो उसी क्षण में है that we look to the Father and say, God, what can you give me? कि हम पिता की ओर देखते हैं और कहते हैं कि पिता तू मुझे क्या देगा। He gave you Jesus. उसने यीशु आपके लिए दिया, What more can He give you? और ज्यादा वो आपको क्या दे The सकता Bible है। says He has given you all things. और बाइबल कहती है कि उसने सभी चीजें आपको दे दी। You know how amazing is Jesus? और कितने अद्भुत यीशु हैं। Listen to what I'm saying. आप सुने मैं क्या कह रहा The हूँ। Bible says that Jesus is the most precious. और बाइबल कहती है कि यीशु जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है। I'm going to say something very controversial, so listen very closely. और मैं बहुत ही विपरीत चीजों को बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। So in other words, दूसरे शब्दों में, when Jesus came to earth, यीशु जब पृथ्वी पर आए heaven was bankrupt. और स्वर्गदूत जो है वो कंगाल हो गया। Swarg. स्वर्ग Heaven was bankrupt. स्वर्ग जो है वो कंगाल हो गया, Because the treasure of heaven was on earth. क्योंकि स्वर्ग का जो खजाना है वो पृथ्वी पर आ गया He था। was here वो यहाँ पर था and He died. और वो मर गया। What more can the Father give you? तो और ज्यादा क्या पिता आपको दे सकता है। Learn
and become mature sons of God. और सीखे और परमेश्वर के सयाने पुत्र आप You बने। know what a son does? और पुत्र क्या कहते हैं A करते हैं? son is not interested in what the father brings. और पुत्र उसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि पिता क्या लाया। A son is interested in his father's business. और पुत्र जो है अपने पिता के व्यवसाय में उनकी A दिलचस्पी son is होती है। interested in knowing what is in his father's heart. और पुत्र की दिलचस्पी होती है कि उसके पिता के हृदय में क्या है। Jesus was a mature son. यीशु जो है वो सयाने पुत्र थे। Even when he was 12 years old, जब वो 12 वर्ष के थे, he told his earthly parents, "Do you not know I must be doing my father's will?" उसने अपने दुनियावी माता पिता को कहा कि क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना है। Let's become mature sons of God. हम परमेश्वर के सयाने पुत्र बने, You know, because that is the ultimate aim of the Christian life. क्योंकि यही ईसाई जीवन का जो है अंतिम उद्देश्य है। And my last point this और morning, मेरा आखिरी मुद्दा, the empty tomb खाली जो कब्र है has resulted in the opening of heaven's womb over earth. उन्होंने दर्शाया है स्वर्ग के जो गर्भ जो है वो पृथ्वी पर खुली है। Listen to this again. आप दोबारा इसे सुने। The empty tomb has resulted in the opening of heaven's womb over earth. खाली कब्र ने परिणाम स्वरूप स्वर्ग का गर्भ पृथ्वी पर खुल गया है। Heaven gives birth. स्वर्ग जो है वो जन्म देती है। Heaven keeps giving birth स्वर्ग जन्म देती रहती है। How do we know it? हम कैसे जानते हैं? because God is a creator. क्योंकि परमेश्वर जो है वो रचना करने वाला God है। creates. परमेश्वर रचना करता है। God brings life. परमेश्वर जीवन को लाता है। God raises the dead. परमेश्वर मृत्यु को जिलाता है। But because of Adam's fall, परंतु आदम के गिराव की वजह से God had to send his son. परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा। And this man, Jesus, और ये मनुष्य यीशु, capital M, this man, Jesus, और ये जो मनुष्य है यीशु, he chose to lay his life down. उसने चुनाव किया अपना जीवन देने का। And because he went into the tomb, और क्योंकि वो कब्र में गए, we all had heaven's attention. हम सभी के ऊपर स्वर्ग का जो है पूरा दर्शन है। On that morning, उस सुबह, you know, there are certain times in history that I would have loved to have been there. और इतिहास के ऐसे कुछ समय है जिसमें मुझे जाना था। I don't think I would want to go when Jesus was being crucified. और मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता था कि उस समय में जाऊं जहां पर यीशु क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, I wouldn't have been able to bear it. और मैं वो सह नहीं पाता था। But on that morning, परंतु उस सुबह को, as the stone was rolled away, जैसे जो पत्थर लुढ़काया गया, as the angels stood, जैसे स्वर्गदूत खड़े थे, and the King of Kings and the Lord of Lords raised up to life again, वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु फिर जी उठा। he walked out of that grave. वो कब्र से बाहर निकला And he left the power of grave right where it belongs, और कब्र in की- grave itself. और उन्होंने कब्र की सामर्थ को वहीं छोड़ दिया जहां उसकी जगह है। This morning we need to remember that the grave has no power. और आज की सुबह हमें ये याद रखना है कि कब्र के पास कोई सामर्थ नहीं It has है, absolutely no power. और उसके पास कोई सामर्थ नहीं है। Paul says that death, you have lost your sting. Grave, where is your power? और पौलुस कहता है कि हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ है? He says, death, you have lost your sting. Grave, you have lost your power. और वो कहता है कि कब्र तेरी सामर्थ कहाँ है और मृत्यु तेरी डंक कहाँ है? We are looking at a God who has left behind the power of death. और हम ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जिसने मृत्यु की सामर्थ को पीछे छोड़ दिया। You know something? आप क्या जानते And हैं? because he was raised back to life again, और वो जीवन में फिर जिलाए गए, इसी कारण I want to tell you, every dead situation in your life can come back to life. मैं चाहता हूँ आपको बताना कि आपके जीवन की हर एक मरी हुई If परिस्थिति there's से जी something सकती dead है। in your life right now, यदि आपके जीवन में कोई चीजें मरी हुई हैं, the same power that raised Jesus from the dead is here. वही सामर्थ जिसने यीशु को जिलाया वो यहाँ पर मौजूद The है। same power that raised Jesus from the tomb is in this place. वही सामर्थ जिसने यीशु को कब्र से जिलाया वो यहाँ पर मौजूद And it's है। not only in this place, the Bible says it lives in me. और वो केवल इस स्थान में नहीं परंतु वो मेरे अंदर जीवित So है। if you're going through a dead situation in your life, यदि आप अपने जीवन में मरी हुई परिस्थिति I से want you गुजर to रहे हैं, speak to that situation. मैं चाहता हूँ आप उस परिस्थिति से कहे। You know, some of you are dealing with dead, depressing situations. और आप में से कुछ लोग जो है वो मरी हुई निराशा के परिस्थिति में Look है। to your situation and say, come back to life in Jesus' name.
name. अपनी परिस्थिति की ओर देखिए, आप कहे कि यीशु के नाम में तुम जी उठो। Even death listens to the command in the name of Jesus. कि मृत्यु भी यीशु के आज्ञा का पालन Even करती death है। has to bow down when Jesus' name gets जब taken. यीशु का नाम लिया जाता है तो मृत्यु को भी झुकना Some होता of you who है। are going through situations in your life, और आप में से कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। I just want to tell you one thing. मैं आपसे एक चीज कहना चाहता Before हूँ, the end of this year, इस वर्ष के समाप्त होने से पहले you're going to see God bring life to dead आप situations. देखेंगे परमेश्वर मरी हुई चीजों में You're जान ला going रहे to हैं। see God bring life into dead आप situations. देखेंगे परमेश्वर मरी हुई चीजों में जान ला रहे I हैं। don't care what was dead. और मैं नहीं चाहता कि क्या मरा हुआ है। Yes, it's been dead. हाँ, वो मरा हुआ That's है। okay. वो ठीक है Let it be dead. और उसे वहीं रहने दे। But it does not matter. परंतु इसका कोई मायना नहीं। Even if it is dead, the Bible says the power in the name of Jesus will bring it to life. और यदि वो मरा हुआ है फिर भी बाइबल कहती है कि यीशु के नाम में उसमें जान आ What is जाएगी। your dead situation? आपकी मरी हुई परिस्थिति क्या Is है? it lack? क्या वो कमी घटी है? Is it finances? क्या वो आर्थिक समस्या है? Is it an addiction? क्या वो बुरी आदतें हैं? Is it the fact that you have no job? क्या वो सच्चाई है कि आप बेरोजगार हैं? Is it the fact that you have tried to invest into your family members but they are not accepting? क्या ये सच्चाई है कि आप अपने परिवार में उनके लोगों में निवेश कर रहे हैं परंतु वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं? Is it the fact that you haven't been able to find someone to settle down with? क्या आप जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं पर आप उसे नहीं पा रहे हैं? What is your dead situation? आपकी मरी हुई परिस्थिति क्या है? Your situation has a name. आपकी परिस्थिति का एक नाम है। Take its name right now. इसी क्षण उसका नाम ले। Take it. आप ले। What is your situation? आपकी परिस्थिति क्या है? Take its name. उसका नाम आप ले। Take it. आप ले। Did you take it? क्या आपने नाम लिया? And now command it. आप उसे आज्ञा दे। Command it in the name of Jesus. Come back to life. और यीशु के नाम में आप उसे आज्ञा दे कि वो जी उठे। Come back to life in Jesus' name. यीशु के नाम में आप जी उठो। It does not matter what you have gone through. I want to tell you that resurrection power is here in this place. और मायने नहीं रहता किस चीज से आप गुजरे हैं परंतु पुनरुत्थान का सामर्थ यहाँ मौजूद है। And God is going to do something new over this church this 2025. ये 2025 में परमेश्वर इस कलीसिया में कुछ तो नया करने पे है। No one in this church will be jobless. और इस कलीसिया में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। No one in this church will be with any debt. और इस कलीसिया में कोई भी कर्जदार नहीं होगा। No one in this church will be sick. इस कलीसिया में कोई बीमार नहीं होगा। No one in this church will be unmarried. इस कलीसिया में कोई अविवाहित नहीं No होगा। one in this church will be depressed. इस कलीसिया में कोई भी निराश No नहीं one in होगा। this church will be bound by sin. और इस कलीसिया में कोई भी पाप में नहीं This गिरा होगा। church is a victorious church. ये कलीसिया विजयशाली This कलीसिया है। church is a living ये church. कलीसिया जीवित This कलीसिया church है। sees great power and great grace. ये कलीसिया महान सामर्थ और महान And अनुग्रह को this देखती church है। has been established by Jesus. ये कलीसिया यीशु से स्थापित And की गई because है। it has been established by Jesus, और ये यीशु से स्थापित गई है इसी कारण। no power in hell will be able to win. और अंधकार की कोई शक्ति जो है वो विजय नहीं कर Jesus सकती। said यीशु ने कहा that I will build my church and the gates of hell will not prevail. मैं कलीसिया को बांधूंगा और जो स्वर्ग जो दूत है वो इसके विरुद्ध में नहीं जा पाएंगे। Jesus is building you this morning. यीशु आज की सुबह आपको बांध रहे Jesus हैं। is building you this morning. आज की सुबह If यीशु it is आपको for you, बांध रहे lift हैं। up your hands and say, Jesus, I receive it. आप हाथों को उठाकर कहिए यीशु मैं ग्रहण करता Jesus, हूँ। I receive it. Let your voices rise to heaven. अपने आवाज़ों को उठाकर कहिए यीशु मैं ग्रहण करता हूँ। Lord, let every dead situation come back to life in Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम से हर एक मरी हुई चीज जान आ जाए। Lord, not one person, Lord, प्रभु कोई भी एक मनुष्य not नहीं one person in this place will ever walk the same way. और इस स्थान में कोई भी मौजूद वही स्थिति से नहीं गुजरेंगे They may have come in with a dead situation, और वो मरी हुई परिस्थितियों के साथ में आए होंगे but as they walk out of this place this morning, परंतु जैसे वो इस स्थान से बाहर जाएंगे they will see resurrection power. वो पुनरुत्थान के सामर्थ को They will see देखेंगे। resurrection power. वो पुनरुत्थान के सामर्थ को We call देखेंगे। for testimonies in Jesus' name. यीशु के नाम से हम गवाहियों को बुलाते And we हैं speak a word of blessing over your people. और आपके लोगों पर आशीष के वचनों की Whom घोषणा the करते Lord हैं। has blessed can never be cursed. जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया है वो कभी शापित नहीं हो We सकते bless हैं। them, Lord. हम उन्हें आशीषित करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन।